फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक्स जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहें। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स चार्ज से। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके ऊपर बेस्ड है। आइदर ये चार्ज स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, कोई चार्ज है आपके पास Q और वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, या फिर आपके पास कोई चार्ज है और वो चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और भी केस हो सकता है कि यू हैव अ चार्ज एंड दैट चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज चार्ज इज स्टेशनरी, charge is moving with a constant velocity, so let me write it stationary charge moving with a constant speed, so it's a constant velocity, and then this is an accelerated charge. फर्स्ट पार्ट जिसमें चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, चार्ज एक स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि चार्ज की वजह से उसके विसिनिटी में जो और चार्जेस होंगे उनको फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करेंगे कि उनको आकर्षण फील हो रहा है या फिर वो उनको प्रतिकर्षण फील हो रहा है। वो इस चार्ज से दूर जाने की कोशिश करेंगे या फिर वो इस चार्ज के पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब कि इस चार्ज की जस्ट प्रेजेंस से ही बाकी चार्जेस अफेक्ट होंगे। तो ये जो अफेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि कोई भी स्टेशनरी चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो फील्ड बाकी चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगा। ये फील्ड इस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। And this electric field we will denote by a symbol capital E, and this E will actually cause a force on other charges. वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कूलाम फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट केस ये है हमारा फर्स्ट केस जिसमें चार्ज स्टेशनरी था। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि चार्ज आपका किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एक करंट की तरह बिहेव करेगा। इट विल बी लाइक अ करंट वायर, यू कैन से। सो इफ इट इज अ करंट, देन एवरी मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज was producing an electric field, now it is moving, so it will also produce a magnetic field that we can denote by a symbol capital V. So there is a magnetic field also. Also, what you can see, if there is a magnetic field already existing somewhere in the region and the charge is moving, then it will feel a force. We call it a magnetic force, and that magnetic force we will see in the later classes as Q times V cross B. So the stationary charge will feel a force called Coulomb force, and that force is like QE, where E is the electric field. Moving charge will produce a magnetic field, and also it will be influenced by the external magnetic field and feel a force called magnetic force. Then comes the third case. Third case where the charge is moving but it is an accelerated charge, means its velocity is also changing with time. So this is a special case where we will have that the charge will actually radiate. It will generate radiations while moving in the space. So it will generate radiations, like it will generate electromagnetic waves. So basically all the electricity and magnetism is governed by these three phenomena of the charge. One, the charge is stationary. Another, the charge is moving with a constant velocity. And the third, charge is accelerated and it is generating electromagnetic waves. But before going into the details of all these things, we can see first we should understand what is charge. So let's start with the definition of the charge. So I'm erasing this. So what is the definition of the charge? If I tell you that charge doesn't have any definition, so it will be very funny to say, but it is the reality. We do not have any appropriate definition for the charge. We just say that charge is a fundamental quantity and it cannot be defined. So we are just saying charge is some fundamental quantity.
we just have certain properties of the charge. What are the properties? First is the symbol of the charge. So what is the symbol? We will denote the charge by either a small q or by a capital Q symbol. Any of the two symbol we can use. Second is what is the unit of the charge? So we will define the unit of the charge by the coulombs only, क्योंकि coulomb was the person who actually gave the coulomb force or the charge particles feeling a force in the presence of other charges. So the unit is coulombs. एंड इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल C सिंबल से. ये तो बहुत ही बेसिक हुआ. नाउ आती हैं दे आर मोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, जिसको हम बोलेंगे कि चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज फील करता है. लेट मी राइट इट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. सो द नेचर ऑफ द चार्ज यू कैन से. नेचर ऑफ द चार्ज कैसा हो सकता है? चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जिसको हम जैसे आप लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा. चार्ज कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज लाइक प्रोटॉन्स. एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स रहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सो चार्ज फर्स्ट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज. अनदर, अगर हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं तो उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज रहते हैं? नेगेटिवली चार्ज. अनदर इज अ नेगेटिवली चार्ज. कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है. उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स. और एटम एक एग्जांपल है जिसमें ये तीनों तरीके के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं. आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, आपको प्रोटॉन्स मिलते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और आपको न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं जो न्यूट्रल है, जिनके पास कोई चार्ज है ही नहीं. इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, एक रफ एस्टिमेट. So let's suppose I am denoting a symbol plus, and this is a nucleus, and in the vicinity of the nucleus, electrons are revolving. So electrons are revolving around the nucleus. So nucleus consists of protons and neutrons, and electrons are going around and around. This is the nature of the charge. Now comes the more important properties like quantization of the charge. So let me first erase this. What is the fourth property? Quantization. Quant is an important word here, and due to this word, इस वर्ड की वजह से ये पूरा फिजिक्स की ब्रांच निकलती है, क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स कहां से निकलती है? आप लोगों ने बोर का मॉडल पढ़ा होगा. बोर का मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम mvr is proportional to nh over 2 pi. तो अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम इस nh over 2 pi या फिर h over 2 pi के प्रोपोर्शनल होगा, so electrons can revolve in those orbits. So ये n का जो फैक्टर है, ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. n can only be a integer. It can only belongs to an integer. Same concept we are using in the quantization of the charge. What is the quantization of the charge? Any charge that you will observe in your life or anywhere in the surrounding and the universe, all that charge will always be an integer multiple of the charge of the electron. Means I can say charge q will always be some number of electrons times the charge of the electron. ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी. कोई भी चार्ज जो बनेगा वो एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिला के ही बनेगा, और उनके नंबर को हम बोल रहे हैं n. अगर मैं बोलता हूं लेट्स सपोज आई हैव 0.5 कूलम चार्ज, इसका मतलब है 0.5 कूलम चार्ज के अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो कैसे निकाल सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? चार्ज है आपके पास 0.5 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है. मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बारे में. ये टेबल आप याद रखेंगे. यहां पे मैं लिख रहा हूं चार्ज, यहां पे मैं लिख रहा हूं मास,
वैसे तो एग्जाम में वैल्यूज दे देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी देते हैं, आपको याद रहे तो बेटर है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, सो इट इज नेगेटिव 1.6 टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम्स। इसका मास होता है 9.1 टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 31 किलोग्राम। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पे एग्जैक्टली सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है, सो इट इज पॉजिटिव 1.6 टाइम्स 10 टू पावर -19 कूलम्स। इसका मास होता है 1.67 टाइम्स 10 टू पावर -27 किलोग्राम। सिमिलरली न्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज तो आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो। मास इसका अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे जहां पे हम मास डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा 4th और 5th ऑर्डर डेसिमल प्लेसेस पे जाके। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सेम मास है। एक और चीज आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास में 10 टू पावर -27 का टर्म आ रहा है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास में 10 टू पावर -31 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में -27 है। इट मींस प्रोटॉन इज अराउंड 1837, अराउंड 2000 टाइम्स हेवियर है। अगर मैं लिखता हूं मास ऑफ प्रोटॉन, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैवी है तो इसलिए जब भी कोई फोर्स आप लगाएंगे तो फोर्स तो सेम फील होगा दोनों को। मैं मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास E, तो उसकी वजह से फोर्स जो पार्टिकल्स को फील होगा वो होगा QE। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स देखते हैं या आयंस पे फोर्स देखते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। लेकिन अगर आप उनका एक्सीलरेशन देखेंगे जो कि होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन मास प्रोटॉन्स का बहुत कम, बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सीलरेशन उनका बहुत कम हो जाएगा। तो आप अगर लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटॉन विल बी मच लेस देन द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, just due to the difference there in their masses. ओके, यहां तक क्लियर है। ये टेबल हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब हमारा एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास 0.5 कूलम का चार्ज है तो इस 0.5 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो क्या कर सकते हैं हम क्वांटाइजेशन यूज करके, Q इज इक्वल टू NE, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें कैलकुलेट करना है, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमें यहां से पता है। लेट मी राइट इट, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम्स। यहां पर मैं नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमें नंबर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सो वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0.5, सॉरी दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 टू पावर -19, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं 5/16 into 10 टू पावर 19। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आप बोल सकते हैं ये एक पर्टिकुलर नंबर होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 0.5 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 0.5 कूलम एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, उसके अंदर रफली 10^18 ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी कॉल एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, लेट मी रेज दिस। What is the fifth property? It is simple, that charge is a scalar quantity. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा एक सिंपल डिफरेंस बता देता हूं आपको। स्केलर और वेक्टर, ये दो तरीके की क्वांटिटीज हम हमेशा फिजिक्स में देखते हैं। स्केलर्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज दैट हैव ओनली द मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं आई हैव 5 kgs ऑफ शुगर, तो मेरे पास 5 किलो चीनी है, बस एक 5 किलो एक नंबर मुझे जरूरत है, वो चीनी कौन सी दिशा से आई, कैसे आई, उसका मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सो they have only direction, only magnitude,
नो डायरेक्शन। अब चीनी तो मैंने आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया, लेकिन फिजिक्स में हम कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं। पहला एग्जांपल तो आपका चार्ज ही है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हैं वर्क डन, जो भी आप वर्क डन करोगे वो सब एक स्केलर क्वांटिटी होगा। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे स्पीड लिख सकते हैं। मास of a particle, all these are quantities that only require the magnitude। आपके पास 5 kg मास है, या फिर आपके पास 10 जूल आपने एनर्जी स्पेंड किया या वर्क डन किया आपने, तो वो सब एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वेक्टर्स क्या है? द क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब आपको अगर मैं फोर्स लगाता हूं, सो आई एम गिविंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स ऑन दिस बोर्ड, दैट मींस आई एम गिविंग द डायरेक्शन एज वेल, द फोर्स इज इनसाइड द बोर्ड। और इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, so I am giving that the particle has a velocity towards my right direction, and the velocity is, let's suppose, 5 meters per second. So the velocity is 5 meters per second and it is towards the x-axis. So I will say velocity is a vector quantity. So vectors we will denote by a symbol vector, and it is 5. X is we denote in the I cap direction. So it is 5 I cap meters per second. So ऐसी quantities जिनके पास magnitude है 5 and जिनके पास direction भी है I cap, उनको हम बोलेंगे vector quantity। Examples आप लिख सकते हैं velocity, force, electric field, magnetic field, gravitational field। जितने भी फील्ड हम देखते हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों क्वांटिटीज में। और हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो ये है कि चार्ज जो हमारा है, जो जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और डिफरेंस जो इन दोनों क्वांटिटीज में आपको दिखता है वो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपकी दो क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो वहां पे आपको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए आपको ऐसा कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उनका मैग्नीट्यूड है, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं यू हैव अ चार्ज Q1 दैट इज 3 कूलम, यू हैव अ चार्ज Q2 that is minus 2 coulombs, and you have a charge Q3 that is 5.2 coulombs, and now I am asking what is the total charge you have। so total charge calculate करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे total charge Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, and that is, इनको आप ऐड कीजिए तो आपको दिखेगा 5.2 और 3 तो पॉजिटिव है, इनको आपने ऐड किया तो 8.2, और उसमें से आप ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, so you will have how much? Yeah, 6.2. So it is 6.2 coulombs is the total charge. So ऐसे जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो फिर हमें डायरेक्शंस को रिजॉल्व करना पड़ता टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। लेट्स सपोज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द वाई डायरेक्शन, फिर हम उसको उस तरीके से करते हैं। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। नाउ लेट्स सी हाउ अ चार्ज पार्टिकल apply the force, or what is the force between the two charged particles. Let's see that. Okay, I am clearing this. चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स समझने से पहले हम थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि इन रियलिटी ग्रेविटेशनल फोर्स पहले डिस्कवर हुआ, न्यूटन ने पहले इक्वेशन दिया कि दो मासेस के बीच में कितना फोर्स होगा, और उसके एनालॉगस ही हमारा कूलम्ब्स लॉ भी है। तो लेट्स सपोज यू हैव टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये होगा सम कांस्टेंट g दैट वी कॉल एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स
m1 m2 over the distance between the two particles whole square. So this is the magnitude of the force acting between the two masses. Same thing you will see here. You have two charges q1 q2 separated by some distance r. So we are discussing the Coulomb's law, Coulomb's force. So इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो होगा सम कांस्टेंट g. g की जगह पे हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे मास का मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे हम चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे q1 q2 ओवर r स्क्वायर, सेम फैक्टर यू विल हैव हियर. सो यहाँ पे g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पे ये फैक्टर एक अलग से कांस्टेंट है जिसको हम किसी सिंबल k से रिप्रेजेंट करते हैं, and that is 1/4 pi epsilon naught. Vacuum, यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है epsilon naught, this is the permittivity of the free space. अगर कोई और मीडियम है फ्री स्पेस के अलावा तो फिर वहां पे उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट आ जाएगा और वो वैल्यूज उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी. ये जो k की वैल्यू वैक्यूम के लिए अगर आप लिखते हैं तो ये 9 टाइम्स 10⁹ होती है, लेकिन दिस इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी भी एक डायमेंशन है. आप फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं आपको फोकस रखना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है. जैसे मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था, मैंने बोला उसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब. डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, फोर्स की यूनिट मैंने बताया न्यूटन. तो उन सबको यूज करके आप यहां से k की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर, इट विल गो हियर. सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. Coulomb, so Coulomb square, it will go down. So the unit for K will be Newton meter square per Coulomb square. So this is the force that is acting between the two charged particles separated by some small distance r. Now that you can see, these are two analogous equations, but there is a very small difference. What is the difference? This mass or this mass can never be negative. We will always have a positive mass. मास हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव. यहां पे हमने देखा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. सो पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से दिस फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन कि आपका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. मैं आपको अभी बताऊंगा. सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का हो सकता है. सो ओके, लेट मी इरेज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स नाउ. A basic definition that you can see that whenever you have two charges that are of the opposite polarity, ये आपने देखा होगा हमेशा जो अपोजिट पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट में भी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो आप एक मैग्नेट लीजिए, ये तो आपने घर पे भी करके देखा होगा. ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. दूसरा मैग्नेट लीजिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो आप देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास आने लगेंगे. दैट मींस अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. और अगर आप उल्टा करेंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो आपने क्या किया, दो पोल्स को, सेम पोलरिटी के पोल्स को पास कर दिया. सो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे और ये दूर जाने की कोशिश करेंगे. सो देयर इज अ रिपल्सन. सो व्हेनेवर यू हैव सेम चार्जेस, सो यू कैन से सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. This is the first property. Second is opposite charges attract each other. Same charges repel each other. मतलब अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा. या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, अगेन उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा.
लेकिन अगर आपका एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, सो देयर विल बी अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल. I am keeping it here, but I am erasing this portion. So you have a charge Q1, or yeah, let me write it. You have a charge that is 2 coulombs, and you have another charge that is negative 3 coulombs, and there is a distance of, let's suppose, 5 meters between the two. Now I am calling this as a charge 1. And this as a charge 2. So we can say force, magnitude wise, force between the two charge particles will be K, that is 9 times 10 raised to power 9 times the product of the charges 2 times 3. For finding the magnitude, you can ignore the negative sign, that is fine. So it is 6 divided by the distance square, that is 5. But let's keep it 1 to simplify the calculation. So it will be 1 square. So the value of the force will be something like 54 times 10 raised to power 9 newtons. Okay, this is the magnitude. Now, what is the direction? Because if we are defining the force, we also need to tell the direction. So, first, I want to ask, what is the force on the charge particle 1 due to the presence of the charge particle 2? F12. So, आपको ये देखना है कि इस पे क्या फोर्स आएगा इस वाले चार्ज की वजह से. तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे खड़े हो जाइए और फील कीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल मुझे पास लाने की कोशिश कर रहा है या मुझे दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है. तो आप क्या है, आप पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये नेगेटिवली चार्ज है. सो देयर विल बी अट्रैक्शन. इसका मतलब आप उसके पास जा रहे हैं. सो आवर पॉजिटिव चार्ज विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस. सो दैट मींस F12, द फोर्स felt by the charge particle 1 due to the presence of the charge particle 2 is in the right direction. So it will be F is the magnitude IK. दूसरा चीज देखते हैं, F21, force on the charge particle 2 due to the presence of the charge particle 1. तो इस charge particle पे इसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा. अब आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे. आप यहां पे खड़े हैं, अब आप फील करेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल मुझे पास बुला रहा है कि दूर भेज रहा है. फिर से ये पास बुलाएगा क्योंकि दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं. तो पास बुलाएगा, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इधर आने की कोशिश कर रहा है. जब ये चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, दैट मींस इट इज हैविंग अ फोर्स इन द नेगेटिव I कैप डायरेक्शन. सो ये इस तरीके से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू पार्टिकल्स exert a equal and opposite reaction, means for every action there is an equal and opposite reaction. ये charge particle इसको second charge particle को one is feeling a force in the right hand direction, so the two is feeling a force in the opposite direction. So these forces are equal in magnitude but they are opposite in directions. So that's why you can see the Newton's third law is also acting here. Okay, so this is all for this class today. We will continue from here in the next class. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.